All right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, everyone. Thank you so much for joining in on day two. Since I can only see myself, I can see some people who are on a screen. Thank you for joining in. And like yesterday, we also have a different theme today, and I would like to know about you. Your reflections, your thoughts. How was your yesterday class? And then did you notice anyone, or did you also send a message to people who are very good at your outcome? I'll spend few minutes on this to let me know कि आपने जो आपके आउटकम के लिए जो लोग थे, क्या आपने उनको एप्रिसिएशन मैसेज भेजा? If yes, how was their response? What's the special moment that you would like to share it with me? Okay, let me know what did they say. I also got a one message from the participants who are attending. Great. How was the response from the people who were very good at your outcome? मेरी में ही डाल दो ना इनका 9 दिन से बाद में खा लेना ठीक है। Yep, guys, let me know. Okay, and I also texted my boss. He was amazed, like, what happened, Sarfraz? Like, yeah, that sometime, it's their pattern interrupt. Excellent. So, sometime a lot of people who are in our circle and they don't know anything about, even they don't know about their expertise. कभी कभी ऐसा होता है कि हम शायद अपने बारे में कुछ इतना नहीं जानते जितना इर्द गिर्द के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं ऑफिस में, they know about us. So when you appreciate people, when you tell them they are good at it and they become conscious, okay, they become very conscious in terms of noticing. एंड हमारे लिए भी इंसान ज़िंदगी में हमेशा अप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? जब भी हमें कोई अप्रिशिएट करता है किसी काम के लिए, तो वी फील डिफरेंट अबाउट इट। एंड ह्यूमन एल्गोरिथम है ये कि हमेशा हमें अप्रिसिएशन पसंद होती है। हम जो भी काम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। So, and for sure, external validation is also important at the same time. Great. So today my theme is all about forgiveness, you know. So आज हम 2 घंटे की जो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉरगिवनेस के ऊपर पढ़ेंगे. Do you realize or notice there are a lot of people in your life and according to you who have hurt you? Okay, a lot of people and you seem like उन्होंने आपकी जिंदगी में कोई नेगेटिव रोल प्ले किया है. Yeah, a lot of people. कॉर्पोरेट की जबान में हम इसको कहते हैं लेग पुलिंग. Lot of people are there, they played a negative role in our life, and as a result of their actions, as a result of their observations, whatever they do with us, we build some thoughts. Okay. अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम किसी शख्स के बारे में कोई थॉट प्रोसेस बिल्ड कर लेते हैं तो वो शख्स हमें वैसे ही दिखाई देता है, राइट? अगर वो वैसा नाम भी होगा लेट से, तो भी हमें वो वैसा ही दिखाई देगा क्योंकि हम उसके बारे में एक अजम्पशंस बना चुके हैं, ऐसा ही. सो आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी, इसमें हम विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड दैट न्यूरोलॉजी टू फॉरगिव अदर्स, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम हम हज़रत अली से किसी ने पूछा कि गुस्सा क्या है, एंड ही सेड के किसी दूसरे की अमल की सज़ा अपने आप को देना. सो अगर आप
के साथ कोई भी शख्स बुरा करता है लेट से, और आपको बात समझ नहीं आती, एंड वी फील इमोशनली ड्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ इट, हम अपना नुकसान करते हैं, हमारी हमारी बॉडी, हमारी न्यूरोलॉजी, हमारी हमारी फिजियोलॉजी इम्पेक्ट करती है। ऐसे ही है ना कि जब हमें गुस्सा आता है, हम अच्छे महसूस नहीं करते, तो हमारी शक्ल से ही पता चल जाता है, राइट। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो रहा होता है, हम किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, तो हमारी फिजियोलॉजी भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है। आर यू गाइस विथ मी ऑन दिस? Yeah. So, so number one rule that we will be discussing today is respect other person, model of the world. And if you want to write that down, you can write it down. Respect other person, model of the world. Yeah. हर इंसान का एक नजरिया है चीजों को देखने का, एक जाविया है। Yeah. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं, मेरी फैमिली है, मेरी कुछ तरबियत के कुछ उसूल होंगे जो मुझे अपनी फैमिली ने दिए होंगे, और मैं कुछ एजुकेशंस में रहा हूँगा, तो मैं मुझे कुछ टीचर्स ने समझाया होगा, कुछ बुक्स मैंने पढ़े होंगे, और अगर किसी रिलीजन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो उस रिलीजन के मुताबिक मेरा कोई थॉट प्रोसेस होगा, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई एब्जॉर्ब इनसाइड, आई बिल्ड अ थॉट प्रोसेस कि मुझे लगता है मेरी नज़र में ज़िंदगी ऐसी है, तो मेरा एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, राइट। एंड इसी तरह जो आप लोग अपने अपने, यू आर सिटिंग विथ मी, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सरफराज सोचे, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही तस्नीम सोचे। हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं, ऐसा ही। एंड वी से कि ये हमारा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, चीज़ों को देखने का जाविया। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत ऑड समझी जाती होंगी, गलत समझी जाती होंगी, और अगर वही चीज़ें आप किसी यूरोप की किसी कंट्री में चली जाएंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगी। या अगर वही चीज़ें किसी ऐसी एरिया में चले जाएंगी तो शायद वो लोग इसको, आई मीन, ओपन टू एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ठीक है, ना गलत है ना सही है, अकॉर्डिंग टू रूमी, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, एंड मीट मी बियॉन्ड दैट। सो लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे हम अपने नज़रिए को, हम अपनी आइडियोलॉजी को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी और के ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं, और उसको ये बता रहे होंगे कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सही है। एंड दैट्स वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम अकर्स। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों, एंड लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी के कहीं पर भी, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कुछ लोगों ने कुछ लिख दिया है वहाँ पे, एंड यू फील लाइक दैट डजंट रेजोनेट विथ यू, दैट्स नॉट राइट अकॉर्डिंग टू यू। एंड बिहाइंड दैट, देयर इज अ साइकोलॉजी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी वो बोल रहा होता है उसके पीछे उसका अपना एक नज़रिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। The basic idea is to respect other person, model of the world. You know, and why it's important to respect other person, model of the world, because ये जो इंसान के हाथों की या ये फिंगर्स की जो ब्लूप्रिंट्स हैं, ये सारे एक जैसे नहीं है, वी ऑल आर यूनिक। किसी एक इंसान की शक्ल किसी दूसरे इंसान की शक्ल नहीं मिलती, राइट। सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि अगर मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ तो आप लोग भी वैसा ही सोचें? हाउ इज दैट पॉसिबल कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से दुनिया मुझे नज़र आ रही है, वही सही हो सकता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ ये मेरी नज़र में सही हो, जैसे आप देख रहे हैं आपकी नज़र में वैसी चीज़ सही है। सो आइडिया इज व्हेन वी डोंट रिस्पेक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, वी लूज अ पर्सन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिसएग्री करते हैं किसी के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब किसी अपना थॉट किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं, तब उस शख्स को पुश कर रहे होते हैं। हम्म? उस ताल्लुक को भी बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, we as a whole lose that person, we as a whole lose that relationship. Now, when I say कि respect other person, model of the world, does not mean कि कोई चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करी तो आप उसके साथ नफरत करने लग जाओ। इट्स लाइक एग्री टू डिसएग्री। या इट्स लाइक एग्री टू डिसएग्री कि ठीक है, वॉट एवर यू थिंक इट्स ट्रू, वॉट एवर आई थिंक इट्स ट्रू, अकॉर्डिंग टू यू इट्स फाइन, अकॉर्डिंग टू मी इट्स फाइन। एंड
देयर इज ऑल्सो मेटाफोर, वासफ अली वासफ साहब ने कहा कि जो कायनात है पूरी दुनिया, दैट्स ऑल्सो डाइवर्सिफाइड, हाउ के मौसम एक जैसे नहीं होते, दिन होती है रात होते हैं, राइट। एंड कहीं का ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल हमवार है, कहीं कहीं ओनली हिल्स, देयर आर लॉट ऑफ लैंड्स जहाँ पे आप क्रॉप्स कर सकते हैं। सो नेचर खुद एक डाइवर्सिफाइड है। नेचर का जो उसूल है वो एक जैसा नहीं है, इट्स ऑल्सो डाइवर्सिफाइड, एंड दैट्स व्हाट मेक अस ब्यूटी। इस कायनात में ऐसा ही होता है ना, आप किसी कंट्री घूमने चले जाते हैं और आपको याद होता है वहाँ पे ये वाला मंजर जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, आई विल गो देयर टू एक्सपीरियंस दिस। वाई? बिकॉज इट्स डाइवर्सिफाइड एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस। सो कम्युनिकेशन के अंदर बातचीत के दौरान जितनी भी हमारी कन्वर्जेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले हम लोग किसी की बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारे मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को अपोज कर रही होती है, हमें लगता है। या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो रिलीजियस रिलीजन को लेके, फिक्के को लेके, कास्ट को लेके, कम्युनिटी को लेके, वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव आवर सेल्व्स दैट वी आर राइट। We always try to prove ourselves that we are right. And behind that, we don't give some chance to someone else to express what they actually want. You know, and that's where the a problem occurs. So it's very very important, जब आप अपने ताल्लुकात में हो कहीं पर भी हो, it's important to respect as a person what love the world. It's like कि एक एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे कि there is a 6, if I can see it is 6, लेकिन अगर वही पेपर में आपको शो करूंगा तो it will be 9. So it's a perspective. फॉर मी इट्स 6, फॉर यू इट्स 9। जब मैं आपकी जगह पे आ रहा हूँ तो वो मुझे वाकई 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको 6 देखना है तो आपको मेरी जगह पे आना होगा। सो इट्स लाइक व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड पीपल, पुट योर फीट ऑन इनटू देयर शूज एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो रिलेशनशिप के अंदर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कपल स्ट्रगलिंग कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये मेरे ऊपर इम्पोज करता है, एंड मेरा जो बॉस है वो मैनिपुलेटिव है, मेरा जो जो सबऑर्डिनेट है वो इस तरह है, इस तरह है। वी डोंट रिस्पेक्ट अदर पर्सन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। Why? Because we don't understand, we don't try to understand. Yeah. So it is very very important. So we are talking about from the point of view कि आप जिंदगी को excellence की तरफ कैसे ले जाएंगे। If you want to live your life from the perspective of excellence, it's important to respect other person model of the world. And please let me know if you have any question on this. Okay, why we should do respect other person model of the world. Yeah. And there are 14 things that we will discussing. Let's see how many we can cover. But that's the ideology. Make sense? Okay, great. In the meantime, I'm also adding few people who are joining in. So it is important. Okay. Then there is also very important concept that I would like to highlight. Okay, ecology. Have you heard about ecology? I will simply type the definition of ecology and post it here. So that's the definition of ecology. So ecology is the study of consequences of any change to a wider system. Okay. And there are 4 types of ecology. And pay very attention to this concept because that's very, very important. Right? Number 1 ecology is self to self. Self to self to self. So for example, अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है and I start beating myself, okay, that's a violation of self to self. Self to self, that's a violation. अगर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूँ कोई भी ऐसी चीज करके, that's a violation. सुसाइड करना, it's a violation of self to self. राइट? कोई भी ऐसा काम करें जिसका डायरेक्टली इम्पेक्ट आपकी ज़ात पर हो नेगेटिवली, है ना। होता है ना कि कभी कभी
कोई और हमारे साथ मिसबिहेव कर जाता है, लेकिन हम 2-3 दिन खाना पीना छोड़ देते हैं, हम बाहर निकलना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, डाइट प्लान बना हुआ होता है वो छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज किसी और ने कुछ किया है, लेकिन हम सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। मेक सेंस? सो इट इज़ अ वायलेशन फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ। जो सुसाइड होती है वो भी वायलेशन है सेल्फ टू सेल्फ की। मेक सेंस? What about the angry we show as it impacts us as well? Tasneem, you have to ask again. I did not catch you. ठीक है, जैसे एंगर है, जैसे सैडनेस है, जैसे फियर है, जैसे बिट्रेयल है, अगर कोई भी शख्स हमारे साथ करता है तो उसका हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है। सो इट्स अ वायलेशन फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ। ओके। अगर इसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका आपकी ज़ात पे क्या असर पड़ता है, उसका आपकी ज़ात पे क्या असर पड़ता है जो कुछ भी करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स है जो मीठा बहुत खाता है, यू नो, शुगरी आइटम्स वो ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसकी बॉडी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? डायबिटिक हो सकता है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इट्स अ वायलेशन फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ। ओके। कोई भी आपका काम जिसका आपकी ज़ात के ऊपर इम्पैक्ट हो, इट्स अ वायलेशन ऑफ सेल्फ टू सेल्फ। अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेल्फ टू सेल्फ टू अदर्स। सेल्फ टू अदर्स में यह है कि वॉट एवर आई डू, उसका सामने वाले शख्स पे क्या असर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि मुझे 3 दिन का प्रोग्राम करना है, 2 hours पर डे, यू नो सो आई रियलाइज कि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट NLP. सो फॉर मी टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड NLP in a very basic way, basic concept, so that they can experience NLP. सो हेयर आई एम रिफ्लेक्टिंग सेल्फ टू अदर्स, कि जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ उसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है ना। एंड अगर यूथ कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लोग, या अकॉर्डिंग टू सर्फराज जैसे लिंकोलिन कॉर्नर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इट्स अबाउट सेल्फ टू अदर्स, कि आप जो कुछ भी काम करेंगे उसका बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या? एंड वी हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग के हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते आ रहे हैं उनका बाकी लोगों के ऊपर क्या असर होता है। क्या वो नेगेटिव असर हो रहा है या वो पॉजिटिव असर हो रहा है? अगर वो पॉजिटिव हो रहा है, इट्स राइट। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो इट्स अ वायलेशन। वायलेट कर रहे हैं हम इकोलॉजी को एज अ होल। यहाँ तक बात समझ आई? सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, या तो हम सेल्फ टू सेल्फ होते हैं या सेल्फ टू अदर्स होते हैं। एक फादर से अगर पूछा जाए कि आप जल्दी घर क्यों जाते हैं, और बच्चे को ट्यूशन पे लेकर जाना है, इस वजह से घर पे कोई हो नहीं जी, बच्चों को ही टाइम देना है, इट्स सेल्फ टू अदर्स। मेक सेंस? मैं ये जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना है, एंड आई वांट टू ग्रो। एंड अगर मैं यहीं बैठा रहूँगा तो शायद मैं ग्रो नहीं कर पाऊँ, दैट्स व्हाई आई नीड टू स्विच। इट्स सेल्फ टू सेल्फ, राइट? ओके। लॉट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि हम लोग इनकी वायलेशन करते हैं, है ना। इस पे मुनीर न्याजी का शेर है, आई अक्सर अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि मैं भी तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। कि अगर कोई शख्स मेरे साथ बुरा कर जाता है, एंड उस नतीजे में मैं अपने आप को कोसता हूँ, मैं अपने आप को बुरा भला कहता हूँ, तो मैं खुद भी तो अपने आप को नुकसान पहुँचाता हूँ ना। अगर मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा, अगर मैं अपने बारे में बेहतर महसूस नहीं करूंगा, और अगर मैं अपने बारे में यू नो एक्नॉलेजमेंट नहीं लूंगा आप अपने आप से, हाउ पीपल विल एक्नॉलेज मी। डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? सो सेल्फ टू सेल्फ, सेल्फ टू अदर्स। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ टू सोसाइटी। व्हाट डज दैट मीन? आप मुझे बताएं, सेल्फ टू सोसाइटी का क्या मतलब है? डू लेट मी नो। सेल्फ टू सोसाइटी का क्या मतलब है? Okay, self to society, serving others, self to society. Yeah, serving others is fine. That also come. Grow trees, example, I'll come here. हमारे काम का सोसाइटी पर इफेक्ट,
It means whatever you are doing, what is impact on the society? Excellent. People, pleasure, benefit to more than one, be good to all, one's impact on others. Yeah, you all are correct. An act through which we can teach something to anyone and he or she can advocate the cause in the society. Yeah. I mean, you guys are getting the sense what I'm trying to say. सेल्फ टू सोसाइटी का सिंपल मतलब ये है कि आपके काम से मुआशरे पे क्या असर पड़ता है, आपके काम से मुआशरे पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वायलेशन क्या हो सकती है, जैसे कि इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट वाइन की बोतल लेके आप अपने मोहल्ले में नहीं घूम सकते हैं, या आप अपनी सोसाइटी में नहीं घूम सकते, इट्स अ वायलेशन ऑफ द सोसाइटी, राइट। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इट्स कॉमन, राइट। एंड हमारे माशरे में कहीं कहीं कुछ एरिया ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म का लिबास होता है, वो पहना जाता है, राइट। सो अगर उस वो लिबास छोड़ के कोई और लिबास पहना जाएगा उसी माशरे में जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, तो ये उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू जो हम अगर सामने लोगों की करें तो सोसाइटी पे काफ़ी असर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि काफ़ी सारे लोग नशा करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ड्रग्स यूज़ करते हैं, छुप छुप के करते हैं, अगर किसी सोसाइटी में किसी जगह पे ये रियलाइज़ हो जाए कि इस जगह पे होता है, तो वालिदैन कहते हैं कि ये इस जगह से हटा दो क्योंकि हमारे बच्चे के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, ये तो पूरा सोसाइटी ख़राब हो जाएगा इस ड्रग्स से, लोगों की काम से। तो ऐसा कोई भी काम करना जिसका मुआशरे पे इम्पेक्ट हो गलत तरीके से, इट्स अ वायलेशन। और ऐसा कोई भी काम करना जिसका मुआशरे में फलाह व बहबूद के लिए। सो जो हमारे कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं ना, कम्युनिटी कॉज होते हैं, चैरिटी के सारे इवेंट्स होते हैं, ये सारे सेल्फ टू सोसाइटी में आते हैं। कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ओवरऑल मोर देन वन, जैसे किसी ने कहा, मुआशरे पे क्या उसका इम्पेक्ट आ रहा है। मेक सेंस? सेल्फ टू सोसाइटी। ओके, देन टेल मी व्हाट वुड बी द फोर्थ वन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड देन यू हैव टू टेल मी। सेल्फ टू प्लेनेट। लेट मी नो। सेल्फ टू प्लेनेट। व्हाट वुड बी दी राइट वे टू से सेल्फ टू प्लेनेट, या वायलेशन बता दें इसकी कि क्या वायलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ओके। हमारे कौन से ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो कि सेल्फ टू प्लेनेट के काम को सपोर्ट कर सकते हैं और वायलेट कर सकते हैं? environmental related, pollution is a violation of self to self, excellent. uh, Climate change impact, plastic pollution, yes, yes. Deforestation, the role we play for universe, 100%. Pollution, littering, ocean pollution, etc., etc., 100%, 100%. So for example, I'm giving you a very basic definition. आप लोग मेरे सारे प्रोग्राम में बैठे हुए, राइट। आई डिड नॉट गिव यू एनी मैनुअल इन हार्ड कॉपी एंड आई डिड नॉट से कि इसको प्रिंट निकालें। ओके। आपको पता है कि जो पेज बनता है वो दरख्त काट के बनता है। सो इमेजिन दिस कि अगर मैं 10 साल तक यही काम कर रहा हूँ और हर महीने जो है ना 200 लोगों को मैं NLP सिखा रहा हूँ, हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ, लाइफ कोचिंग सिखा रहा हूँ एंड डिफरेंट लाइफ साइकिल सिखा रहा हूँ, तो हाउ मेनी वायलेशन दैट आई एम डूइंग, कितने सारे दरख्त मेरी वजह से कटेंगे। So that's why we say eco-friendly. That's why we say sustainable. That's why we say, create your own notes, create your own experience, and everything should be digital. So, for example, I said, I will share some notes on your WhatsApp channel, WhatsApp, your YouTube or WhatsApp channel later on. I said I'll send you an email. I did not say I'll send you a TCS. Make sense? And बहुत सारी companies काम करती हैं, for all those who are working in corporates. For all those who are working in corporates, you know that कि हम ग्रीन HR, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, गो ग्रीन, आप ATM यूज करते हैं तो एक जगह होता है कि यू वांट टू स्लिप और यू वांट गो ग्रीन,
यू टेक गो ग्रीन तो स्लिप नहीं आती, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। ग्रीन बैंकिंग, 100% ग्रीन डे, रिड्यूसिंग वेस्ट साइकिल। तो इस वजह से काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं या ग्रोसरीज के मॉल्स हैं जहाँ पे शॉपर्स अब इस तरह किया गई हैं कि दे एब्जॉर्ब, राइट। अगर आपने लेनी है तो प्लास्टिक शॉपर नहीं होगी, उसी में आप अपना सामान ले जाएंगे। सो इन एनी वेज सेल्फ टू प्लेनेट के अंदर वायलेशन बहुत है, and at the same time companies are also paying attention to how can they create a sustainable environment। और आजकल अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इमर्जिंग काम हो रहा है तो इट्स लाइक ग्रीन इन्वायरमेंट, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। और पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वेदर अपडेट्स हैं, जिस तरह मौसम की तब्दीली हो रही है, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आवर एक्शंस। पहले पहले नहीं सोचा, इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी, सड़कें बना दी, दरख्त काट लिए। नाउ इट्स लाइक जब गर्मी होती है तो वो ज़्यादा चलती है, सर्दी बहुत कम आती है। या इट्स बिकॉज कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इट्स नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली। और जिन इलाकों में ग्रीनरी होती है, जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा होते हैं, जो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, जिसमें एसओपीज होते हैं, आप देखेंगे उसका मौसम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ कराची, इट्स टेरिबल, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट के दरख्त लगाने, बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं वहाँ पे। बट अगेन some of the violation, so we can ask कि how many times we input in a way कि it is beneficial for the society. So for example, um I was sitting with a mentor and he's actually a sustainability trainer and he was saying कि मुझे तो लगता है कि जो लोग जॉब करते हैं वो हर दिन में एक दरख्त काटते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ प्रिंट निकालते हैं, समझ नहीं आता, दूसरा प्रिंट आ जाए, फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, फिर तीसरा प्रिंट आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी आर वेस्टिंग सो मच, डिस्कार्ड करते हैं बहुत सारी चीज़ें हम। सो दैट्स अ वायलेशन। हम वायलेशन अपने आप से शुरू करते हैं, और वही वायलेशन हमारी पूरे प्लेनेट पे चली जाती है। अगर मैं अपने आप को बीट करता हूँ, बुरा भला कहता हूँ, दैट्स अ वायलेशन। अगर मैं किसी शख्स को नुकसान पहुंचाता हूँ, दैट्स अ वायलेशन। अगर मैं मुआशरे में अच्छा काम नहीं कर रहा, बुरा काम कर रहा हूँ, दैट्स अ वायलेशन। अगर मैं इस प्लेनेट के लिए इको फ्रेंडली नहीं चल रहा, दैट्स अ वायलेशन। एंड एवरी टाइम व्हेन वी डू वायलेट थिंग्स वी मैस अराउंड, वी मेस्ड अप। मेक सेंस? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी एक्शंस हैं, जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, बाकी लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। लाइक आई सेड यस्टरडे कि एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, और अगर वो घर में शाउट करता है तो उसका असर घर के बाकी फर्द के ऊपर भी होता है। एज इफ अगर कोई शख्स है, एक शख्स है किसी घर में बीमार है, यू नो अगर वो बीमारी में अपनी बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, तो उसका असर बाकी लोगों को भी होता है, इरिटेट होते हैं उससे। समटाइम वी पीपल फील इमोशनली अनस्टेबल, lot of things can happen। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिफ्लेक्ट, रियलाइज कि हमारे जितने भी काम होते हैं ज़िंदगी में, सम और दी अदर वे हम लोग कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं। या सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो काम है, सो फॉर एग्जांपल जब भी मुझे कुछ करना होता है तो आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि इज़ इट अ वायलेशन फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ। अगर मुझे यहाँ पे जवाब मिल जाता है कि नो इट्स नॉट अ वायलेशन, आई गो टू सेल्फ टू अदर्स, ओके, देन आई गो टू सेल्फ टू सोसाइटी, देन आई गो टू सेल्फ टू प्लेनेट। और हमारे अगर डिसीजंस इकोलॉजिकली ठीक होंगे ना, तो काफ़ी सारे मामला हमारे ठीक हो जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू आस्क कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं जो ये काम कर रहा हूँ इसका सामने वाले शख्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका ओवरऑल सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका ओवरऑल माशरे पे या प्लेनेट के ऊपर एज अ होल क्या असर पड़ेगा। And as a result of it, we develop a thought process. Yeah.
So, you guys are with me, okay? And that means that you want to learn how to think, right? And like I said yesterday, we are not here to change others. We are here to change ourselves. We are here to build ourselves. We are here to, identify where we can improve ourselves. Yeah? And that's very, very important. And people learn and pick things at their own time. That's also, very important thing कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं जब हमें ये लगता है कि आ, हमें ग्रो करना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाते। फिर अचानक से ऐसा मामला आता है जब एक ऐसा पुश मिल जाता है और हम अपने आप से वादा करते हैं कि ये काम तो अब मैं करते ही रहूंगा, एंड यू डू इट, राइट? बहुत सारे लोगों को समझाया होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। जब उनका टाइम आता है वो फौरन कर लेते हैं। सो लोग अपनी ज़िंदगी को अपने टाइम पे बेहतर करते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को अपने टाइम पे तब्दील करते हैं। सो फॉर मी, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, माई जॉब इज़ टू फैसिलिटेट, एंड फॉर यू, if you are with anyone or your loved ones and you see they are struggling, your job is to simply, educate them. You can't force them. you know I always give this metaphor to myself कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की टाइम में जब तूफान आने वाला था, तो उन्होंने एक कश्ती तैयार की और उस कश्ती में बैठे अपने बेटे को पुकारने लगे कि तुम आके बैठो, तूफान आ जाएगा, तुम डूब जाओगे। लेकिन उसका बेटा उस कश्ती में नहीं बैठा। क्या? सो हम अपनी ज़िंदगी में आप सिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं, यू कैन एजुकेट पीपल, बट पीपल विल लर्न एंड पिक अप एट देयर ओन पेस एंड टाइम। So that's why, we say, coming back to the point, we always need to, respect other person model of the world. It's fine, whatever they think, whatever they, whatever they absorb, whatever the experience, it's fine for them. It's fine for me as well. I need to respect. And respecting is not like accepting whatever they are doing in their life. It's like agree to disagree. you know बिहेवियर को मोल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस बंदे को आप एक्सेप्ट कर लें एंड फिर उसको तब्दील करें। अगर आप रेजिस्ट करेंगे ना बहुत ज़्यादा, पहले ही उसको कह देंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये नेवर बी एबल टू डू दिस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन अपनी ज़िंदगी को कितना तब्दील करना चाह रहा है। डू लेट मी नो, यहाँ तक बात क्लियर है? आर यू गाइज विथ मी? ओके। Agree to disagree is like, so for example, uh, if anyone has said something to me according to their belief system and I feel it's not true for me, okay, I would simply say you're right, I agree. That does not mean that कि मैं भी उनकी तरह वही करने लगूंगा जो वो काम कहते हैं। Just to show them, that's right. According to you, you're right. So I respect. The right word would be to say, I respect your opinion. I say respect your opinion. That also shows that somehow I don't, believe on this, but I really respect. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ये नहीं कहते कि हमारी बात मानो, ये कहते हैं कि हमारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। कपल के दौरान, आई डू कोचिंग एंड वो कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। या टीम के अंदर भी, सेल्स की टीम है, टारगेट मीट नहीं हो रहे, दे कम एंड दे से के आई अंडरस्टैंड कि वी आर स्ट्रगलिंग इन गेटिंग टारगेट्स और हमारी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने चैलेंजेस बता रहे हैं, एटलीस्ट हमें रिस्पेक्टफुली सुना तो जाए, हमारे एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज तो किया जाए कि हमें क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं फॉर द कॉर्पोरेट सेटिंग, राइट? बट वी सिंपली डिनाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, वी डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन गेटिंग द रिजल्ट्स। बिकॉज अगर सामने वाले शख्स को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, you will never be able to lead them. Make sense? Yeah. So that's very, very important. And what else? Do you guys have any questions so far? Let me know if you have any questions, and or if you're with me, I'll simply hold for a few seconds to. Great, thank you so much.
And what do you mean by rapport building, by the way? Have you heard about rapport? Let me just type this one. It's not rapid, it's rapport. Yeah. What's that? Rapport किसे कहते हैं आप? Relationship building, yes. What else? Relationship building. Okay, yes, you heard today. And that's very, very important topic, guys. I'm trying to, communicate the, way of effective communication. To present yourself to someone to feel him comfortable, making your image, make bonding, building similarly. Okay, what else? Okay, great. What else? And by the way, जिस concept के बारे में मैंने लिखा है, that's the only thing that you require in communication. If you understand how to build rapport, you can do anything in your life with anyone. Active listening is part of rapport, 100%. Okay, bonding is part of rapport. In short, if I explain, rapport is the ability to enter in someone's world to make them feel you understand them and you have a common bond. Okay, connecting with others, being empathetic. Empathy is part of a rapport, 100%. Rapport is the ability to enter in someone's world and make them feel you understand them and you have a common bond. And it is the ultimate tool to produce results with others. For all those जो team leads जो हैं, team lead आप में से जो टीम के साथ काम करते हैं, जिनके जिनके टीममेट के काफ़ी सारे लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं होती या आपकी बात को सुना नहीं जाता, कहीं कहीं आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बात समझाने में, मनवाने में, you can utilize this concept. That's very, very important. If you understand rapport correctly and if you apply this, you can make anyone your friend. And when I say anyone, like anyone. Okay. Okay. There are two rules in rapport. Rapport is the process to help you to communicate effectively and also, create a bond with someone's unconscious mind. Okay. Create a bond with someone's unconscious mind. Make sense? Rule number 1. रूल नंबर 1 ये है कि लोग उनको पसंद करते हैं जिनको वो अपने जैसा समझते हैं. या लोग उनको पसंद करते हैं जिनको वो अपने जैसा समझते हैं. जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनकी और आपकी काफ़ी सारी हॉबीज म्यूचुअल होती हैं. बहुत सारे होते हैं ना ऐसे लोग जिनकी हॉबीज, जिनके जिनके उठने बैठने का अंदाज, चीज़ों को देखने का अंदाज, अगर किसी दोस्त से मिले तो आप कहते हैं यार ये बिल्कुल मेरी तरह ही सोचता है, इसलिए ना इसके साथ मेरी अच्छी लगती है ना. ये मुझे बिल्कुल भी कभी मना नहीं करता किसी काम के लिए. मेक सेंस. लोग उनको पसंद करते हैं जिनको वो अपने जैसा समझते हैं. एंड सेकंड रूल है रिस्पेक्ट अदर पर्सन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. सो हमने दो रूल की बात की. पहला रूल है कि पीपल रिस्पेक्ट अदर पर्सन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेकंड इज पीपल लाइक पीपल हु दे थिंक और लाइक देम. यहाँ तक कोई सवाल? ये दो रूल हैं अपनी जिंदगी में. It's like, building an excellent rapport with anyone with these two rules. Make sense? So, rapport is also at unconscious level. Rapport is also at unconscious level. Yeah, let me repeat it. पहला रूल ये है कि लोग उनको पसंद करते हैं जिनको अपने जैसा समझते हैं. सेकंड रूल ये है कि लोगों की मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करना. Make sense? Yeah, that's how it is.
And there are few ways to build rapport. There are few ways to build rapport. हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, that plays 55% role. Yeah, write it down, Tasneem. If you have any question, you can write this down. हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी कम्युनिकेशन में 55% रोल प्ले करती है। या और जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो 7% होते हैं। तस्नीम, वेरी गुड क्वेश्चन। एम्पैथी, acknowledgement, understanding, and showing that you also resonate with their thought process. Active listening, you also said. So these are the things that can help you in building excellent rapport with anyone. Yeah. Let me just share some model of communication with you guys. Typing it. Okay. So I said body language is 55% and जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो 7% होते हैं एंड 30% जो है वो टोन ऑफ वॉइस होता है ना, टोनैलिटी जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। 38% इज टोनैलिटी। आर यू गाइस क्लियर ऑन दी डेफिनेशन? 38%, sorry. If you want to create some notes, you can. Anyways, it's recording. और आप में से कुछ लोग जो कि ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं, जिनकी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विथ यू लेटर। यू विल हैव टू गिव मी सम टाइम। ओके। सो हमने कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें पढ़ी हैं? 38% जो है हमारी टोनैलिटी है। ओके। 38% हमारी टोनैलिटी है, 7% हमारे वर्ड्स हैं एंड 55% बॉडी लैंग्वेज है। सो इसका मतलब है कि हम अल्फाज पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन असल काम तो बॉडी लैंग्वेज है, फिजियोलॉजी है, जिस तरीके से मैंने पोस्चर्स बनाए हुए। मेक सेंस? सो फॉर एग्जांपल, जब भी हम किसी से बात करेंगे तो उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ उसूल हैं रैपोर बनाने के। I'll give this example to you and you guys can, understand it better. So there are two concepts in rapport building physiology के point of view से। एक होता है मैचिंग और दूसरा होता है मिररिंग। एक होता है मैचिंग और दूसरा होता है मिररिंग। सॉरी, इट्स स्पेलिंग मिस्टेक। मैचिंग एंड मिररिंग। Okay. Yes, Tasneem, I'll explain this. So for example, if you're with me, can you raise your right hand? Just like this. Can you raise your right hand? Okay. So if you look at the screen, ये जो मेरा राइट हैंड है ये आपको किस तरफ नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे, राइट? बिकॉज इट्स अ मिरर इमेज। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं एंड यू रेज योर राइट हैंड, तो वहां पे क्या नजर आता है? लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होता है। क्या नजर आ रहा होता है? लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होता है। ओके। सो वी कॉल इट मिररिंग। कुछ लोग होते हैं जो लेग क्रॉस करके बैठ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आई कांट शो यू दिस, और आई कैन से जस्ट लाइक दिस। सो ये मेरा
लेफ्ट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरे राइट आर्म के ऊपर रखा हुआ है, यू नो। अगर मेरी तरह आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यू जस्ट डेमोस्ट्रेट, यू कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट आर्म, जस्ट लाइक दिस, जस्ट कीप इट, सो वी कॉल इट मिररिंग, यू नो। सो आईने के सामने आप खड़े होते हैं, जो चीज़ आपको लेफ्ट पे नजर आप जब आप लेफ्ट पे करते हैं वो आपको राइट पे नजर आ रही होती है, यू नो। सो मिररिंग इज लाइक कि अगर आप सामने बैठे हैं और कोई भी शख्स, आपके सामने यूं करके बैठा है, ठीक है, ये उसका राइट हैंड है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे कर सकते हैं, सो वी कॉल इट मिररिंग। सही है। आईने के सामने सिंपल खड़े होंगे, जो भी चीज आप करेंगे आपको उसके अपोजिट नजर आएगी, और सामने वाला शख्स जैसे कि उसका, लोग सामने बैठे होते हैं ना, यूं बैठ के और अपनी जो राइट लेग है अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रख लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं, आप उसका अपोजिट कर लें, वी कॉल इट मिररिंग। एंड तस्नीम, इट्स अ बॉडी लैंग्वेज, बाय द वे, मेक सेंस? ओके। सो नंबर वन थिंग दैट यू लर्न टुडे इज कि सामने वाला शख्स जैसे भी कर रहा होगा आपने उसी पोस्चर का ऑपोजिट करना है, मिररिंग इमेज करना है। एंड मैचिंग क्या हो सकता है तस्नीम? इट्स अनकॉन्शियस एंड इट्स लाइक मैचिंग अदर पर्सन फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, इट्स अ फिजियोलॉजी मैचिंग, जैसे सामने वाला शख्स बैठा होता है उसको लगता है ये बिल्कुल मेरी तरह बैठा है, महफिल में बैठ के किसी एक बंदे को खांसी लगने लगती है ना, तो दो और लोग भी खांसते हैं खुद ब खुद अनकॉन्शियसली। It's a unconscious vibe, an unconscious connection. That's very very important. Okay, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ टेल मी कि अगर मैं कहूँ कि इसको मैच करना है तो कैसे होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी शख्स के साथ बैठा हूँ सामने और उसने अपनी राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, तो फॉर मी व्हाट वुड बी दी मैचिंग, कि मैं भी अपने राइट लेग को अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस करूंगा, सो वी कॉल इट मैचिंग। ठीक है, ये दो उसूल मैंने आपको समझाया। अच्छा, इसको मजीद डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो जब बात कर रहे होते हैं तो उनके हाथ इस तरह से हिलते हैं, या उनके हाथ में कोई पेन होती है या मोबाइल होती है, या टेबल पे हाथ रखे होते हैं और बार बार टच कर रहे होते हैं, राइट। इट्स लाइक फिजियोलॉजी एक इम्पोर्टेंट क्यूज देता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को, कि सामने वाला शख्स भी वैसे ही बैठा है जैसे आप बैठे। ओके। अच्छा, ये तो सिर्फ फिजियोलॉजी की बात थी, इसके अंदर ब्रीदिंग भी मैच कर सकते हैं आप किसी के साथ। कोई शख्स है आपके सामने बैठा हुआ है और जो जिसकी ये ब्रीदिंग बहुत स्लो है, लेकिन आप उसके सामने तेज तेज सांस ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें ये भी कर सकते हैं आपकी कोई शख्स है आपके सामने और वो पर बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा है, लेकिन आप बहुत फास्ट बात कर रहे हैं। यू आर नॉट बिल्डिंग रेपोर, यू आर ब्रेकिंग रेपोर। So you simply start breathing like that person. You simply start communicating with that person. So I'm not saying kill yourself and just do whatever people are doing. I'm just saying be flexible. What I'm saying, be flexible, and that's very very important. And these are all the technique that I am, helping you to understand in terms of rapport building with anyone. And हमेशा communication के दौरान, don't use the word but. Do not use, right? Use and, क्या, जब आप कोई शख्स आपके सामने कोई बात कर रहा होता है ना और आप कहते हैं कि हाँ बट, दैट मीन्स कि यू हैव कंप्लीटली डिसऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय अदर पर्सन। बट अगर आप एंड यूज करते हैं, सो कुछ जगहों पे मैं कॉन्शियसली बट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप में से अगर कोई मुझसे बात करेगा तो आई विल बी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ यूजिंग बट एंड एंड। सो अगर आप किसी के साथ ताल्लुक बिल्ड करना चाह रहे हैं तो यू विल यूटिलाइज एंड। थैंक यू फॉर sharing your perspective, and I also would like to share my perspective.
सो इसमें होता ये कि जब आप बट यूज़ करते हैं तो सामने वाला शख्स ये समझता है कि उसकी बात को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर आप एंड यूज़ करते हैं तो उसको लगता है कि उसकी बात सुनी गई है मुकम्मल। है। एंड जो बॉडी लैंग्वेज 55% की बात की थी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई खुशी की खबर सुनानी होती है और अगर आप खुशी की खबर अल्फाज में सुनाते हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज ये रिफ्लेक्ट नहीं करवा रही होती कि आप हैप्पी हैं? राइट। सो हम जो भी कुछ बात कर रहे होते हैं वो हमारी बॉडी से इम्पैक्ट आता है और वो अलाइन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, यू डोंट से एनीथिंग, आपकी शक्ल देख के लोग कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, आज 12 बज रहे हैं, तुम्हारी शक्ल पे कुछ तो हुआ है, यू आर हाइडिंग, समथिंग हैज हैपेंड। इट्स अ बॉडी लैंग्वेज, physiology, and it's very very important, very very important in terms of building rapport, है ना? कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्टेट को ना हाइड नहीं कर पाते। सो फॉर एग्जांपल, अगर उनके साथ घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऑफिस आएंगे, उनकी शक्ल ही बता देगी कुछ हुआ है, सम पीपल आर स्माइलिंग, सम पीपल कैन मैनेज देयर स्टेट। और बॉडी लैंग्वेज के साथ बिल्कुल लोग कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। जस्ट बी अवेयर, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी जिंदगी में रेपोर्ट ब्रेक करते हैं, यू आर बिल्डिंग रेपोर्ट, आई एम जस्ट सेइंग बी अवेयर, सम टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी टाइम व्हेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम एनीवन, आई ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर के हाउ दे टॉक, टोनैलिटी कैसी है, पिच कैसी है, उनके अंदाज़े बयां कैसा है, क्या आवाज़ ऊंची है, आवाज़ नीचे है, धीमे लहजा है या बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हैं। A lot of people in the breakout room या मेन रूम में मौजूद है जिनके साथ मेरी बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी फ़ोन पे काफ़ी दफ़ा। एंड आई कैन सेंस दैट कि जब उनकी कॉल आती है तो हाउ आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, आई लिसन टू देम। इफ दे आर फास्ट आई विल बी फास्ट, इफ दे आर स्लो आई विल बी स्लो। uh, I was sitting with one of my master trainer from India, and he said कि मेरे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लोग मेरे पास, मुझे कम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लेकिन मेरे जो प्रोग्राम है वो 7 डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, आई एम अर्निंग वेरी गुड। सो आई आस्क के व्हाट्स योर सेल्स स्ट्रेटजी, एंड ही सेड कि हेड टू हेड कन्वर्सेशन। आई डोंट बिलीव इन becoming a viral, I believe in head to head conversation. When someone is coming to you and they are talking, you should talk in a way that they find a value in their life. Does that make sense, guys? Are you with me on this? So just reflect and realize. Okay. And if you're asking anything, तो थोड़ा questions को डिटेल में लिख लें, या raise your virtual hand, I'll unmute you and ask, क्योंकि sometime मुझे भी नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हैं। So just like Seher wrote के why can't manage, I don't understand कि क्या manage नहीं कर पाते, so you have to ask specific. How's it going, by the way? Do you have any specific thought process so far जो हमने कवर किया है? कुछ समझ आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं? I want to create an experience for you. I don't want to cover anything. रेपोर के ऊपर कुछ थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ है आपका? Do you think you will be able to build more rapport with the people around in a different way now? Excellent. And that's the objective. Okay, great. Amazing. Thank you so much for writing it down. So how about let's take a break for 10 minutes and then we can join back by 8:05 पे, Okay. So see you after 9 minutes approximately. Okay. There are two interesting questions and someone asked कि अगर हम सब कुछ हमने ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है इन बिल्डिंग rapport. So I would reply in a metaphorical way. Your try does not mean that you have tried everything that's available in universe. Okay. Your try does not mean that you have tried everything that is universally available. So sometimes we have limited knowledge to understand people. So increase your knowledge, increase the flexibility in you, and also make all the list of limiting beliefs that you have, that
nothing is working out. So it's a limiting belief. And if you operate from this limiting belief, you will never get results. So it's very important to be flexible and understand your own emotions, which are, triggering you at the end of the day. Okay. Then, Sarfraz, you asked, okay, does it work to build rapport by only matching and mirroring? Matching and mirroring are really important in terms of building rapport. That can set a prerequisite for you to establish a very good rapport, but the story does not end here. When you have high profile people, you also need to have a certain agenda in your mind, what exactly you want. And then you can replicate the same conversation. So when I say 7% word, does not mean that words are not important, but you establish from physiology. You establish from physiology, then you convert into words and then tonality, how they are talking and how they are being impressed. Okay. And someone asked, as you highlighted, non-verbal is 55%. So how can I use my body language and don't build trust and make forgiveness easier? Okay. When I say forgiveness, there is also another presupposition that I will cover today. But as far as, the rapport building is concerned, if you want someone to, understand you better, or, help them to understand what they're actually doing, you can start from body language. And the most important thing, I forgot to tell you, कभी भी कॉपी नहीं करना किसी को. सो व्हेन आई से मैचिंग एम्ब्रॉयडरी डज नॉट मीन दैट कि अगर तस्नीम ने जो है ना अपने हाथ हिला दिए तो मैं फौरन अपने हैंड शेक कर दूं, या सरफराज ने अपना चश्मा इस तरह से कर दिया तो मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं. दैट कैन मेक अनकंफर्टेबल टू समवन. दैट्स नॉट मैचिंग एंड ब्रिंग, दैट्स कॉपिंग. हमें कॉपिंग नहीं करना, कॉपी नहीं करना किसी को. ये स्लाइड मूवमेंट होती हैं जो आराम आराम से हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं. अगर किसी ने भी कोई फिजिकली क्यू दे है ना आपको, तो यू कैन टेक फ्यू सेकेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता से यू कैन चेंज योर स्टेट. अगर फौरन से लग जाएगा ना, मैं ऐसे बैठा तो सरफराज ऐसे बैठ गया, फिर मैंने पीछे किया, तो दैट पर्सन विल बी अनकंफर्टेबल कि क्या हो रहा है मेरे साथ. बजाय रेपोर्ट बिल्डिंग होने की, यू विल ब्रेक द रेपोर्ट विद दैट पर्सन. यू नो दैट्स नॉट, मिमिक्री नहीं हो रही यहाँ पे. Rapport building is very unconscious, and you have to, a slight and not sudden changes. Slowly and gradually you have to, come to the point. Yet you also need to aware कि what exactly you want agenda होना चाहिए अपने जहन में एक. You guys understand this? Okay. There is very important concept that I would like to reflect, and let me just put it here. Okay. These are the universal rules according to NLP, and मैं इसको आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा. अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ और एक सोफ़ा कम बेड है, और उसके ऊपर एक मैट्रेस रखा हुआ है, और उसके ऊपर मेरा लैपटॉप है. यू नो मेरे कमरे की सारी दीवारें जो है ना हाफ वाइट हैं. यू नो मेरे राइट साइड पे कर्टन्स हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस, इस कमरे का एंट्रेंस डोर है. तो आपके जहन में कुछ इमेज बन रहा होगा मेरे रूम का. क्या वो इमेज बराबर है जो असल हकीकत है यहाँ पे? नो. एग्जैक्टली. We call it the map is not the territory. The map is not the territory. And that's a beautiful concept कि हम जब जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये हमारे अपनी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने परसेप्शंस होते हैं. वो रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते. सो फॉर एग्जांपल, हमने कल सेशन लिया था, आप में से किसी एक ने इस सेशन के बारे में ज़रूर किसी को बताया होगा. ज़रूर किसी एक को बताया होगा, मोर देन वन टू. क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही बताया जैसे मैं बात कर रहा हूँ? You have explained in your own way. That's why, you have your own perception. That's why we say map is not the territory. People interpret the world through their own perspectives. And perspectives जो हैं वो इंसान के अपने maps होते हैं, which may not reflect the reality or territory. सो ऐसे ही जो कानों के कच्चे लोग होते हैं, उनको अगर कोई शख्स कुछ भी आके बताता है, हम सब यकीन कर लेते हैं. बाद में पता चलता है जिस शख्स ने बात बताई थी वैसे थी ही नहीं, बात कुछ इस तरह से थी. रिलेटिव्स के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, बाद में पता चलता है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन वो कहीं फला रिश्तेदार आया था उसने ऐसा कहा था. सो पीपल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव टू एक्सप्लेन, और हमारे सारे मसले इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीज़ों को अपने अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं.
सो अगर कोई भी शख्स आपके सामने कुछ भी बयान कर रहा है, अंडरस्टैंड दिस, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी सामने वाला शख्स कह रहा हो वो रियलिटी हो। वो उसका अपना मैप हो सकता है, जैसे आप चीज़ों को प्रोसेस करें। राइट, अगर जो कुछ भी मैंने कहा आप उसको वर्ड टू वर्ड सेम उसी अंदाज से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अगर कर देंगे तो मैं आपको अपने सारे प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री कर दूंगा। पीपल डिफाइन थिंग्स देयर ओन perspective. Tasnim, what do you mean by then why we map our imagination with other words and believe them? What do you mean by this? You can unmute yourself if you want. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है बेसिकली, अभी आप डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दिस थिंग, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लाइक समटाइम व्हेन somebody is speaking or saying something, your imagination power is so strong is that, like you gave this example of this image of the room, but when you see that that's not same. But sometimes what happens in life is, if somebody's saying something as per their own perception, but your mind conceive it other way around, like the mind cannot conceive what you think, mind will always think about what the other person is saying. So why it happens? हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्चुअली सजेशंस को एक्सेप्ट करता है। कुछ सजेशंस हमें डायरेक्टली दी जाती हैं, कुछ सजेशंस हमें इनडायरेक्टली दी जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, think about your favorite movie. Can you think about your favorite movie? Can you think about your any favorite show on Netflix? Okay, great. अब जब मैंने आपसे पूछा तो आपने वही सोचा था, आपने ये नहीं सोचा कि आपके घर में कोई मेहमान आया है। You did not thought about anything else. So Tasneem, when I say कि people explain their own perspective, that does not mean that the thought process will not go into your mind. But what I'm saying कि अगर हम उनके thought process को वैसे का वैसा यकीन कर लेंगे कि दुनिया वैसी ही है, you know, that means कि we are not aware about our own perception as well sometimes. So जो जो आइसोलेशन होती है हमारी वो यही होती है ना कि हमें लोग कुछ कहते हैं और आंखें बंद करके हम किसी का यकीन कर लेते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके जहन में थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं होगा, होगा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो कुछ भी शख्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है वो उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी इमेजिनेशन होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप भी अपने जहन में जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वो आपका अपना होता है, किसी ने आपको सजेस्ट ज़रूर किया हुआ होता है लेकिन आपकी इमेजिनेशन आपकी पर्सनल है। व्हेन आई से थिंक अबाउट योर नेटफ्लिक्स, तो क्या आप सब लोगों ने अपने एक ही फेवरेट मूवी के बारे में सोचा होगा? सबकी एक ही मूवी होगी? नहीं, फॉर सम पीपल इट वुड बी डिफरेंट। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। वाई वी आर स्टडिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो लोग आपके सामने बात कर रहे होते हैं उनका एक अपना मिजाज होता है, अंदाज होता है बात करने का, और एक अपना तरीका होता है चीज़ों को देखने का। ठीक है, डज नॉट मीन दैट कि वो किसी को अपोज कर रहे हैं या किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट्स देयर ओन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड एंड वी सिंपली नीड टू रेस्पेक्ट। जैसे कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, जब हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए। मेक सेंस? सो इस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। फॉर sure, whenever you are hearing anything, you will build some thought process inside you. Make sense? Okay. Then the second concept I would like to highlight that's also very, very important. Let me just post it here. Okay. Let me add people. Just give me some time. I'll share this document with you also. And the second model of the world, that we study is Femina. You can type your question for sure. I'll answer.
The second is people respond to their map of reality, not reality itself. Okay, for example, behavior is based on how people view the world, not how it's objectively it is. हम उसी की बात कर रहे हैं जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम उसी को कनेक्ट कर रहे हैं कि पीपल रिस्पॉन्ड देयर मैप ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया को लेके, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। रियलिटी वैसे नहीं होती शायद। So for example, एक a student avoids public speaking because they believe they will be judged, even if the audience is supportive. Hmm? So for example, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में था एंड हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन थी, और देयर वाज अ गाय इन माय ग्रुप एंड ही केम टू मी। उसने कहा कि आपको पता है टीचर बहुत सख्त है और ये तो बहुत मुश्किल सवाल करेंगे, मैं जो है ना विथड्रॉ कर रहा हूँ या फिर तुम डील कर लेना जो भी हो मामला। एंड पीछे सर खड़े थे, उसने सुन ली बात, एंड ही सेड के आई वुड नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिड आई से दैट? मैं तो आपको सपोर्ट करता हूँ हमेशा, यू नो लेकिन मैं तो आपको सिर्फ थॉट प्रोसेस बिल्ड करवाने के लिए सवाल करता हूँ। लेकिन उस जो मेरा जो द गाय हु वाज इन ग्रुप, ही वाज सेइंग थिंग्स फ्रॉम हिज ओन मैप ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव था। सो सम टाइम जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हमारा एक अपना अंदाज होता है कम्युनिकेशन का, मैप ऑफ द वर्ल्ड का, जिसको हम कहीं ना कहीं इम्पोज कर रहे होते हैं, और हो सकता है वो रियलिटी ना हो। ओके, एंड सॉरी फॉर दिस एग्जांपल, मेरा एक मेंटोर है जो अक्सर मिसाल देता है कि फॉर एग्जांपल कभी आप एरोप्लेन में बैठते हैं और आपको ये थॉट आता है कि दिस एरोप्लेन विल क्रैश एंड ये लैंड नहीं करेगा वापस, ये एक थॉट आपको आता है। अगर हमारे सारे थॉट सही हैं तो फिर हम लैंड क्यों करते हैं? वी सक्सेसफुली लैंड समटाइम्स एंड समटाइम नॉट, लाइक कोई भी डिजास्टर हो सकता है, अल्लाह ना करे। बट अगर सारे थॉट्स हमारे रियलिटी हैं तो फिर जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए। सो दैट मीन्स हमारे ऑल थॉट्स आर नॉट ट्रू, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यार बड़ी मुसीबत में आ गए हम लोग, ये पता नहीं कैसे निकलूंगा इससे, और आपकी अचानक जान छूट जाती है उससे, एंड यू से कि मैंने इसके बारे में बड़ा गलत सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है मैं बच गया, शुक्र है इसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। जो हमारे थॉट होते हैं वो हमारी अपनी मैप ऑफ द रियलिटी होती है, विच इज़ नॉट द रियलिटी इटसेल्फ, विच इज़ नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। लोगों के बारे में भी हम अक्सर जो थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे अपनी रियलिटी होती है, मैप ऑफ द रियलिटी होती है। हमें नहीं पता किसी के अंदर में उसकी डीप स्ट्रक्चर क्या है, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बट वी सिंपली डू इट। वाई? बिकॉज सम टाइम हम हमेशा अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड से चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? एंड रिमेंबर, हमारा आज का थीम है फॉरगिवनेस। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू गो टुवर्ड्स फॉरगिवनेस बिकॉज पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू विद देयर पॉजिटिव इंटेंशन। ग्रेट। ओके, there is also most important thing, there is no failure, only feedback। पास और फेल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में हमें पागल बनाने के लिए होता है। देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ओके, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिजल्ट्स, that result is not desirable result, it is undesirable result, it is still a result। So there is no failure, only feedback। Every outcome is learning opportunity। So for example, if I'm with you guys and you ask me anything that I don't know, ओके, आप में से कोई मुझसे सवाल कर लेता है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा कभी, ओके, दैट्स फाइन। आई विल राइट इट डाउन, आई विल फाइंड आंसर, एंड टुमारो इफ आई कम अगेन, आई विल एक्सप्लेन दिस। सो देयर इज नो फेलियर। दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, एंड इफ आई आस्क यू कि डू यू नो अबाउट एनीथिंग रैपोर्ट बिल्डिंग, और उसमें से आप लोगों में से कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वी डोंट नो, दैट डज नॉट मीन दैट कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। दैट्स अ सिंपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर कि रैपोर्ट है क्या। ऑफिस में, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, आई वुड से हाईलाइट देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। Yeah, there is also ways to give feedback, for sure it's important। Sometimes we make other person very uncomfortable in giving feedback, but it's important। So there is also example कि if a project does not succeed, treat it as a chance to refine your strategy instead of labeling it's a failure। एंड आई थिंक हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। सो आई वाज थिंकिंग कि मेरा बच्चा अभी स्कूल जाने वाला है, अगर वो किसी स्कूल की एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाता है तो आई विल स्पेशली गो टू सेलिब्रेट हिज फेलियर एंड टेल हिम, इट्स नॉट अ फेलियर, लेट्स सेलिब्रेट, इट्स अ फीडबैक फॉर यू।
And I think we should start from home. हमें बचपन से इसकी डेफिनेशन गलत बताई गई है कि हाय आप किसी पेपर में फेल हो गए, कोई मसला हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप डफर हैं। इस कंपैरिजन में देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज वी डेवलप इनसाइड अस, एंड सारे ट्रॉमास हम अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं। बड़ी बहन जो है वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसके रिश्ते जल्दी हो जाएंगे, तुम दिखने में सही नहीं हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स वी डू लिसन। इजंट दैट ट्रू? सुनते हैं हम, हमारे घर में लव्ड वंस हमें ये चीज़ें बताते हैं, एंड we simply need to start from our home. you know every failure is a feedback. There is no failure, only feedback. If I don't qualify any paper, I need to learn how to qualify, and I will again go back to qualify. So sometimes you are stuck in some relationship and you are unable to explain your perspective and view, how to bring out us from that condition. I started some practices on my home. Okay, so staying in this relationship, it's your own choice. Staying in relationship would be a personal choice. I would say learn how to communicate again, build some, thought process around building rapport with anyone, understand their model of the world, and then you start communicating. Like I said earlier, your try or your stuck does not mean that there's no solution. That means you don't know the solution. That's it. And there is a solution available. Does that make sense? इस दुनिया में हर मसले का हल कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर मुझे उस मसले का हल नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना मसला हल नहीं कर सकता। आई नीड टू फाइंड अ वे, यू नो एंड सम टाइम कुछ फैसले हमारे ऐसे होते हैं जिनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं। दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। यहाँ तक मुझे बता दें, इफ़ यू गाइज आर विथ मी एंड you understand the concept correctly, let me know, guys. Okay, I will not finish all 14 NLP presupposition, but I'll explain few, and that are very, very important. Here is another one. People have all the resources they need. लोगों के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। कैसे है? People are inherently resourceful and capable of achieving their goals with the right tools and mindset. So, for example, a shy person has the potential for confidence. They may need techniques like visualization or practice to unlock it. सही है? Like I said, we can do it. Okay, we need to know the strategies and resources हमारे पास मौजूद होते हैं. A shy person have all the resources to find what techniques or visualization he needs to bring in his life to make himself confident. Are you guys with me? Okay. And by the way, what is the meaning of communication according to you guys? What is the meaning of communication? Communication का क्या मतलब है? Okay, so according to you, Tasneem, why they don't do it? Like, that's your question. People have all the resources in their life, and it's their values. If someone has not the desire to overcome their challenges, they will stay in it. And thank you for asking. मैं इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा आज. I will give that concept to you कि हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में क्यों रहते हैं. Why we love our sorrows and difficulties. There is a psychological reason behind it. I'll come that later. मुझे बताएं कम्युनिकेशन का क्या मतलब है according to you guys. What's the meaning of communication? What is the meaning of communication? Communication is sharing your thoughts with others. True. To convey the message through any model of communication like verbal, non-verbal. Yes. Share your ideas. Okay, great. What is the meaning of communication? Connect with others. Excellent, guys. Exchange of thoughts. Okay.
According to NLP, there is a different level of communication to convey. Thank you, Femina. The meaning of communication is the response you get. How? Effective communication depends on how the listener interprets it, not just the speaker's intent. So, for example, if a manager instruction confuse the team, they should rephrase them instead of blaming the team. Meaning of communication is the response you get. And every day, I practice this. Okay, if I'm not getting the response I want, I need to change the way of my communication. I need to change the way of communication. And if I operate from कि ये बंदा है ही सड़ियल और ये तो ऐसे ही है, इससे बात करूंगा तो मुझे यही जवाब मिलने वाला है. If I operate from this belief, I will not get what I want. You remember rapport की पहली definition में I said one line कि entering into someone's model of the world to be successful with people. To be successful with people. लोगों के साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, तो I need to find a way to communicate effectively. That's very, very important. So communication is the response you get. And लेबल जितना करेंगे उतना हम फंसेंगे, जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को उतना हम सही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे. Okay. The most important thing I'm just putting here, and if you all are ready, let me just share. Every behavior has a positive intention. Sometimes लोगों को डाइजेस्ट करने में बड़ा मसला होता है. नहीं, उसने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ऐसे कैसे पॉजिटिव इंटेंशन है उसका. So every action is motivated by a positive purpose, even if it seems harmful. Example क्या है? Procrastination might stem for a desire to avoid failure or stress, not laziness. कुछ लोग इसलिए procrastination करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं कि कोई उनको जिंदगी में फेलियर ना हो, कोई स्ट्रेस ना आए. सो इंटेंशन इज पॉजिटिव कि मैं जिंदगी में नाकाम नहीं होना चाहता, मैं जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना चाहता. दैट्स अ पॉजिटिव इंटेंशन, राइट? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू टेक ऑल द टाइम, maybe take 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, and just reflect on this. Every behavior has a positive intention. Every behavior has a positive intention. बैंक पे बैंक पे जब आप जाते हैं, ऑफिस में कहीं जाते हैं, तो गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होते, उनके हाथ में गन होती है, असला होता है. जब आप गेट पे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है, राइट, कहाँ जा रहे हैं, आपकी एंट्री होती है, फिर उनके हाथ में असला होता है ना. जब बैंक पे या किसी इदारे में डाका डालना है तो उसी असले का इस्तेमाल होता है उसी हथियार का इस्तेमाल होता है. डू यू गाइस अंडरस्टैंड? हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन पॉजिटिव होती है. एंड this is the actual point where we say NLP helps in forgiveness. अगर कोई भी शख्स कोई भी बिहेवियर पिक कर रहा है और आपके साथ डेमोस्ट्रेट कर रहा है, वो उस वक्त उसके लिए बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है. That's very difficult to digest sometimes. I'm not saying, for me, I took some time to reflect. I'll be very honest. you know I was projecting a lot of negative thought about others. I took some time to reflect कि हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ behaviors होते हैं, वो जिन तरीके से वो ऑपरेट कर रहा होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें लगता है कि ये इसका पॉजिटिव इंटेंशन. एंड टेक योर टाइम टू बी कंफर्टेबल विद द प्रोसेस. कि हमारा कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन हमारी होती है. इट्स लाइक अगर आप अपने घर में कोई गन लेकर आ रहे हैं, कोई असला लेकर आ रहे हैं, यू आर देयर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. कहीं ना कहीं किसी का कोई भी काम उसको कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है. आर यू गाइज विथ मी ऑन दिस? सो अगर अब किसी शख्स ने मेरे साथ कुछ भी किया है, दे हैव सेड समथिंग टू मी which is not right for me, और मुझे लगता है कि that's where NLP comes to help you to forgive people. People tend to tend to reflect and realize on
few areas which are beneficial for them. Does that make sense, guys? It is very, very important. If you want to forgive people, if you want to help people to understand who they are, always reflect and realize people choose the best available resource that they have, and they simply demonstrate. Okay. So when I say forgiveness, it's not about just forgiving others. It's about, letting go of all the burdens which are on you. And ecologically, it's not correct because it's a violation of self to self. ठीक है, अगर मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं किसी और शख्स की वजह से, एंड मैं उसको लेट गो नहीं कर पा रहा। आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये जो बैगेज मैंने अपने कंधों पे लिया है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? अगर तस्नीम बेनिफिशियल है तो रख लें, कैरी दिस, अगर नहीं है तो वी हैव टू रिमूव इट। सो आई डिड नॉट से कि हम जो भी बात करेंगे उसके एंड पे आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल टू फॉरगिव मी, टेक ऑल द टाइम, बट आई वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज आई वांट टू मेक यू फील लाइट। दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इन सेल्फ अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट में, when you realize a lot of stuff that people have done with you or you have done with yourself, it's not about simply forgive, नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ, मुझे सबक सिखाया। It's about being awareness कि I have learned these lessons, and now and I'm not saying कि give them a chance to again hurt you. It's not the case. It's also important to reflect and realize कि हमें लोगों को दोबारा मौका नहीं देना if you're not comfortable. That's your call. Yeah. But at the end of the day, we have to reflect and realize. So these are the things that we have been discussing. कोई और सवाल है आपका? Let me know, guys, if you have any questions so far. And if you are with me, just thumbs up. I can only see sometimes Tasneem is always available on video, sometimes Sarfraz. To let me know if you have any question, just write it down in the chat box. Okay, there is also a very important thing, and I will simply okay. हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि कोई भी शख्स अगर कोई एक काम गलत करता है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे, है ना। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किसी मोमेंट में गुस्सा आ जाता है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये तो है ही गुस्से वाला। कोई भी बिहेवियर आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, लोग आपको लेबल कर देते हैं कि यही उसका बिहेवियर है और यही मुकम्मल है ये। लेकिन क्या हम मुकम्मल वही हैं? क्या अगर मुझे किसी मोमेंट में गुस्सा आता है तो क्या 24 घंटे मुझे गुस्सा आता है? नहीं। क्या अगर मैं 24 मुझे खुशी होती है किसी चीज से तो क्या मैं 24 घंटे खुश रहता हूँ? नो। अगर मैं एनर्जेटिक हूँ, क्या 24 घंटे में वही एनर्जी शो करूंगा सबको? 8 घंटे ऑफिस में लगाने के बावजूद विल आई बी एबल टू बी मोर एनर्जेटिक? यू नो दैट मीन्स के जो मैं बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ दैट बिहेवियर इज नॉट एक्चुअल मी, दैट्स पार्ट ऑफ मी। So here is the another tagline: people are not their behaviors. You are more than that. And to be really honest, if you ask me, अगर आप लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दें। People are not their behaviors. Separate a person's identity from their actions and behavior can change. So for example, a colleague who missed deadline is not inherently unreliable. They may need better time management skills. You guys understand this? कि अगर आपका कोई ऑफिस का कोलीग है जो कि कोई डेडलाइन उसने मिस कर दी है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अनरिलायबल है। दे माइट नीड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एंड वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि हम अपनी ज़िंदगी में सारा टाइम 24 आवर्स सिर्फ बिहेवियर्स के ऊपर लेवल करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये वही है। सो वी हैव टू बी माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, दे आर मोर देन दैट। मिजाज है ना इंसान की जिंदगी में, 24 घंटे में डिफरेंट मिजाज आते हैं हमारी जिंदगी में। सो आस्क योर सेल्फ, यू नो
कैन यू रिमेम्बर एनी पर्सन इन योर लाइफ जिन्होंने कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ डेमोस्ट्रेट किया हो और आप उनको उस डेमोस्ट्रेशन की वजह से लेबल कर रहे हैं? कैन यू रिमेम्बर? डोंट डोंट नीड टू टेल मी, यू नो। या एंड उसके बाद उन्होंने डिफरेंट बिहेव भी किया, लेकिन आप उसी लेवल को अपने साथ रख के बैठे, यू नो, दैट पर्सन हैज डन दिस विथ मी। फिर उसके बाद चाहे वो कुछ अच्छा भी कर ले, उसके बावजूद यू यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव दैट थिंग कि नहीं ये ऐसा ही है। सर यू कैन आस्क, यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली आस्क। Okay. How to handle situation when felt alone to describe yourself? In what context? Okay. So, do you guys want to build good relationship with people? Yeah, that means कि we have not forgiven that person 100%. Yeah. बिकॉज हमारी जब लेबल हो जाती है किसी भी बिहेवियर को, आप भी अगर किसी आप भी आपको भी कोई गुस्सा आ जाए, और आप उस गुस्से में कुछ कह दे किसी को, और वो शख्स दूसरे दिन आपको, आपका मूड ठीक हो गया, दूसरे दिन भी आपको ये कहे, तो आप कहते हैं नहीं यार वो तो मुझे गुस्सा था ना, बस मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर लोग बार बार आपको लेबल कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? ओके। और अकॉर्डिंग टू यू तस्नीम, इफ दैट लेबल इज करेक्ट, आई वुड से द राइट वे टू से कि अगर वो शख्स वाकई ही बार बार आपके साथ ऐसा कर रहा है, या then that means के ask yourself, is this relationship is valuable for you or not? Yeah, then you decide. Do you understand? So what I'm saying कि अगर जिंदगी के किसी भी मौके पे कोई शख्स है जो बार बार वही बिहेवियर डेमोस्ट्रेट कर रहा है, I need to ask if this relationship is valuable for me or not. If that is valuable, I will help that person to seek some professional help. If there is anger, there is sadness, there is shouting, there is unhealthy behavior, that there is some root causes to it. A lot of people मैंने देखा है सी लेवल पे बैठे हैं कॉर्पोरेट में, हाईली प्रोफेशनल, हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली कैपेबल, yet they very lack in emotional intelligence कम है उनकी, emotional instability है. Why? Because there are some root causes. I have a lot of people who come to me and they were very good in their professional life. But when I opened, they feel like screaming and crying कि बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या ट्रॉमा अब्यूज अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर डेमोस्ट्रेट कर। And that's why I say people are not their behaviors. Accept the person and change the behavior. Accept the person and change the behavior. And if it's your loved one, you can always help them. Always help them, always support them, always create a healthy environment for them so that they can heal. हमारा जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई चीज़ इंसान को ट्रिगर करती है और उसके नतीजे में हम ऐसा महसूस करते हैं। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू सो फॉर, जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, यू थिंक यू वांट टू फॉरगिव? यू थिंक यू नीड टू फॉरगिव, एंड हो सकता है किसी ने आपको सॉरी बोला भी हो लेकिन आपने उसकी सॉरी नहीं सुनी। कभी ऐसा हुआ है? If someone comes to you and they said sorry, but you did not accept that person, why? Because you are simply labeling their behavior. Yeah. Do you want to forgive now? Do let me know. And be honest, if you will say no, that's also fine. Okay. That's a great approach. So, अगर आपको कोई देखें, वी कैन नॉट चेंज पीपल। अगर लोग मेरे बारे में कोई भी बात करेंगे मैं उनको तब्दील नहीं कर सकता। I want to work on when someone says anything to me and as a result of it I'm feeling something. You know, that's like miserable state कि अगर कोई शख्स मुझे कुछ कह दे और मैं अपने आप को मारने पीटने लग जाऊं और मैं यकीन कर लूं कि ऐसा ही और मुझे बहुत बुरा लग जाए बार बार। So that means I need to know, back to our first class कि शायद आपका जो रिमोट कंट्रोल है उस शख्स के पास मौजूद है।
Bring that remote control in your life. You know, ऐसा हर शख्स आपको कुछ भी कहेगा तो आप कुछ भी महसूस करने लग जाएंगे. You know, listen what's important to you. So, Femina, like I said, अगर सामने वाला शख्स है जो बार बार वही मिस्टेक्स कर रहा है, then you need to ask yourself if that relationship is really important to you or not. And if that's important to you, you suffer with them, you help them to, overcome their challenge of, understanding yourself and behavior and build rapport. रेजिस्टेंस अगर कम्युनिकेशन में कहीं पर भी आपको आ जाए तो उसकी एक एक ही मतलब है. कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस महसूस हो ना सामने वाले शख्स में कि मेरी बात नहीं समझी जा रही, उसका एक ही मतलब है, lack of rapport. You need to learn more, building more rapport. Yeah. Okay. ऐसा होता है ना कि आपका कोई फ्रेंड हो जो आपके साथ बहुत अच्छा हो, आपकी हर बात मानता है, लेकिन आपका कोई दूसरा दोस्त होता है, वो आपके उस दोस्त के बारे में कहता है यार इसके साथ तुम कैसे रहते हो, ये तो बहुत टॉक्सिक है, ये तो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन आप कहते हैं ये तो मेरी बात मान लेता है. दैट मीन्स कि आपका जो रेपोर है उसके साथ वो बहुत स्ट्रांग है. और जहां जहां पर भी आपकी बात मानी नहीं जाएगी, दैट मीन्स you are lacking in building rapport with other person. you know that's very very important. So build that rapport and identify where are you lacking. And जहां जहां पर भी आप struggle कर रहे हैं, the idea is to help yourself in a way that you can create some transformation for yourself and people around you. Yeah, important. That's how life is. Every time when you go back, every time when you understand the process, every time when you feel you're not getting results, you can simply ask, what is it for me? What I need to learn? Okay, let me share something with you. Okay, that's important. I think all 14 NLP presuppositions are very important. That's another thing. ओके, फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे ये कहा है कि हमने तो बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया है, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हमारे लिए, लोग हमारी बात नहीं सुनते. हियर इज द आंसर फॉर यू. पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल द सिस्टम. लॉट ऑफ बुक्स ऑन लीडरशिप, कि अगर आप चाहते हैं कि आप टीम के अंदर इन्फ्लुएंसर हों और आपकी बात मानी जाए, तो अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे नहीं भी हैं, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स. ऐसा होता है ना कि एक ग्रुप लीड होता है जिसके अंदर टीम होती है और टीम में एक बंदा एक्टिव होता है जो इनिशिएट करता है, सारे लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं. सो पर्सन हु इज मोस्ट फ्लेक्सिबल विद द सिस्टम कैन लीड द सिस्टम. ठीक. और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, खामोशी से बैठे रहते हैं, देखते हैं मैं अनकंफर्टेबल हो, सो दे आर मेकिंग ऑल द assumptions. सो अ टीचर एडजस्ट देयर टीचिंग स्टाइल फॉर डिफरेंट स्टूडेंट अचीव्स बेटर रिजल्ट. इसकी एक और मिसाल भी है. फॉर ऑल दोज हु आर टीचर, फॉर ऑल दोज हु आर ट्रेनर्स एंड टीचिंग, द फेल्यूर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट द फेल्यूर ऑफ स्टूडेंट, द फेल्यूर ऑफ स्टूडेंट इज द फेल्यूर ऑफ टीचर. एंड आई थिंक ये किसी मेंटोर ने मुझे कहा था. सो आई एम सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फीडबैक, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेलियर एक्चुअली. अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट डेवलप नहीं कर पाता कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स कि अ टीचर इज नॉट फ्लेक्सिबल इन टीचिंग. And I'm not saying to put everything on teacher when you are not working hard, but I'm saying, think about it. Maybe the possibility is, जितना हम flexible होंगे उतना सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ये रेपो है एक्चुअली. Active listening, allowing some person to appreciate, acknowledge whatever they are saying, and you can mold their, behavior, no matter what. Are you guys with me? So that's how it is. Do let me know if you have any questions so far. Okay. ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. लेट मी जस्ट टाइप इट हेयर और उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको. इंसान का जो भी बिहेवियर होगा उसको हम किसी कॉन्टेक्स्ट में एवल्यूट करेंगे.
या दुनिया में कोई भी बिहेवियर होगा, हम उसको बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट में एवोल्यूट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्टेडियम में मैच चल रहा है तो वहाँ पे स्पीकर और उसके ऊपर आवाज़ आना, लोगों का शोर मचाना इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर लाइब्रेरी होगी तो वही शोर, वही स्पीकर, यू नो, इट विल मेक अदर पर्सन uncomfortable. So all behaviors is context dependent. So what seems inappropriate is one context might make sense in another. Do you guys understand this? Okay. Do let me know if you have any questions so far. Okay. आज मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा कवर किए हैं, उसकी वजह ये है कि आई वांटेड टू गिव यू एज मच एज आई कैन, एंड टुमारो आई विल आल्सो गिव you some of the tools. I would not cover anything as of now, but just let me know how was the process. आज आपने क्या सीखा? Is there anything that you want to highlight? To let me know. What did you learn today? Specific. And हमारे जो behaviors होते हैं वो subjective होते हैं. Behaviors are always subjective. Excellent. Rapport building needs more flexibility. And there is also a poetry on it, जो हम कहते हैं ना कि rapport कैसे बनाई जाए लोगों के साथ. अगर सुनना चाहो तो खामोशियां भी कलाम करती हैं. देयर इज ऑल्सो पोएट्री ऑफ अलामा इकबाल. खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाओ गुल से मकान पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर. सो you can observe, you can get awareness from anything that's happening inside you, around you, and be observant. Like, what else can you do? हर बात पे जहन पे ले लेना, हर बात को अपने ईगो पे ले लेना, हर बात को पर्सनल ले लेना, इट्स नॉट द राइट वे. The right way is to see people out of the level, see people out of the assumptions, see people out of judgments, and that's where you can create the excellent understanding. So should I give you some tasks and assignments for tomorrow? Okay. And do you promise कि आप करेंगे, क्योंकि आज मुझे तो बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया है. Okay. So how to judge the diplomatic peoples, in what way? Okay, your task is you have to observe your techniques to build rapport. So for example, जैसे कल आपके लिए वर्किंग डे नहीं, कल आपके लिए ऑफ होगा, you are at home and try to build rapport. जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, apply this at your home. And don't do this from the perspective of you want to be very successful, and do it from the perspective of you want to get awareness. Yeah. So let's try it home. Go home and apply these rapport building techniques with your loved ones and see what happens. Maybe in the first go you did not get the result. That's fine. And हो सकता है पहले दिन ही you get the results. If you find any challenge, we can discuss tomorrow. Yeah. And there are few ways, like Sarfraz, you asked, I'll share that tomorrow maybe. When I say, be flexible, and you also need to understand your values. अपनी boundary line तो cross नहीं करनी. Yeah. Like flexibility in terms of building excellent connection with others. That's important. Make sense? So your task is you will go home and you will consciously apply the rapport building techniques with your loved one. And once you come tomorrow, you will share some stories around. Maybe you can message me, you have my number. And if you have any question, you can drop me a message. Tomorrow I have full day training session, but anyways, you will drop me a message. I'll meet you all by 7 p.m. tonight. Tomorrow. Let me know if you have any question, else we can sign out.
एंड बिल्कुल खामोशी अख्तियार ना करें, कुछ बताएं कि आप मौजूद हैं रूम में या नहीं हैं, चले गए यहाँ से। डू लेट मी नो गाइस। Okay, great. Okay, I hope this session was meaningful and helpful for you. We will discuss tomorrow, and tomorrow there are some important concept that I will do. So आज की आपकी assignment ये है कि you will go home and you will simply apply rapport building techniques with your loved one, or even कल को अगर आप कहीं friend के पास visit कर रहे हैं दिन में, या कोई आपका friend visit कर रहा है आपको, you can talk to them and you can see what else can you do. Make sense? So with this, thank you so much for today. Thank you so much for all the participation. And, I really appreciate, like I said in the beginning, if you want to appreciate me, appreciate my time. And if you want to appreciate my time, just do task and assignment and be there, so that I at least can, say to myself, okay, if I'm doing something on the complimentary purpose and free of cost, people are getting and taking it serious. सो जो मेरे इन पर्सन जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, उसमें आई थिंक 2-4 लोग हैं यहाँ पर, कि अगर किसी का वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा ऑफ रहता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। सो वीडियो स्ट्रीमिंग इज़ ऑन बिकॉज वी वांट मेक इट इंटरेक्टिव एंड वी वांट टू मेक इट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु इज़ देयर, हु इज़ नॉट देयर। So with this, I'm looking forward to see you tomorrow. And tomorrow we will discuss some amazing concept. So just go and, enjoy the rapport building techniques and come with some meaningful stories. Okay. Thank you so much, guys. Take care. Allah Hafiz.